कौन से हैं वो मुझे बता देना, आई विल डिस्कस विथ यू एक दिन। हाँ प्लीज़, बाकी लोग को 24 कराएंगे तो पहले के 12 भूल जाएंगे वो लोग। दो घंटे के लेक्चर में क्या लीव अर्ली, तो नहीं जाने का कॉलेज में। एक काम करो, तुम ही सिखाओ, मैं चले जाता हूँ। एक तो सब लड़के लोग के बीच में मुझे कॉम्प्लेक्स फील होता है। चलो, बहुत टाइम से मैं देख लूंगा। कैन यू प्लीज पास ऑन द बुक? मुझे अकाउंट्स कोई भी भाषा में समझ में आएगा निकालने। ये सब है एडजस्टमेंट, ठीक है ठीक है। हाँ तो प्लीज लेके आना। वो तो मेजोरिटी हम लोग ने करवा दी है, ओनली वन ही पेड। ये भी किया है हम लोग ने, ओनली वन, दिस वन हैज टू बी डन 7th and 8th। बाकी 15 और हैं, ठीक है ओके, नो इशू। चलो, लेट अस स्टार्ट टुडे with a new chapter, that is last chapter of your FYJC, that is single entry system. This is very easy chapter, मतलब वही से easy chapter because इसका जो sums है ना वो more or less सब same ही होता है, so only figures keep on changing. So once you understand the concept, this chapter is very easy from solving point of view, and I'm very sure if this chapter is asked in your exam, so it will be very easy to solve. Most of the colleges ये chapter syllabus में से omit कर देते हैं, तो you have to stay in touch with your chapter whether this chapter is there or not. वो एक मैडम के कॉलेज में वो चैप्टर है और वो ही नहीं आया है, ठीक है। anyways, and those who are doing CA foundation, this chapter is compulsory for you. मतलब ये तो obviously, इनफैक्ट अभी का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था जनवरी में, उसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ समथिंग कॉल्ड एज सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोग ऑलरेडी पास्ट में एक सिस्टम कर चुके हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सिस्टम? हाँ, डबल एंट्री सिस्टम। सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस you have to answer. What is meaning of double entry system? Do you remember what is double entry system? Because अगर आपको double entry system याद है, और if you know what is double entry system, then only we can know what is meaning of single entry system. So till today, in fact till today's lecture, इसके पहले आपने जो भी बुक कीपिंग में किया है, that is only and only which system? Double entry system. Till final accounts chapter, whatever you have done, I will specify the name of the chapters, that is journal, ledger, subsidiary books, trial balance, final accounts. This is all part of which system? Double entry system. So what is simple meaning of double entry system? Every debit has equal and corresponding credit of the same amount, that is why end में, now तो you know last stage also, that is final accounts, and that is why हमारा बैलेंस शीट लास्ट में टैली होता है, liabilities का total and assets का total are equal. So this is because you are following one system that is called as double entry system. So number one, what is double entry system? As you already said, that every debit has equal and corresponding credit. So सबसे पहला, what is the three features of double entry system? कोई मुझे बोलेगा ना कि ये सिस्टम का 3 मेन फीचर बताओ, तो फर्स्ट फीचर इज
What is this system? First of all, this system is systematic. Obviously it is systematic. मतलब पहले लेजर बनता, सॉरी पहले जर्नल बनता है. अगर साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा है तो हम वो ट्रांजैक्शंस को भी ग्रुप कर देते हैं एंड वी प्रिपेयर समथिंग कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. देन हम लोग लेजर बनाते हैं, फिर लेजर अकाउंट्स क्लोज करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और बाद में फाइनल अकाउंट. सो देयर इज अ, इनफैक्ट नाम में ही है डबल एंट्री सिस्टम. सो ऑब्वियसली दिस सिस्टम और दिस double entry system is systematic. What is the second main feature of this system? That this system is scientific. What is meaning of scientific? Scientific मतलब it is based on certain rules. हम लोग जब डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब का कोई रूल्स है कि जस्ट ऐसे ही कुछ भी देख के किधर भी लिख देते हो. सो ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स एंड वी डोंट ब्रेक दैट रूल्स. मतलब पर्सनल अकाउंट का सर्टन रूल है, रियल अकाउंट का सर्टन रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट का सर्टन रूल्स है. सो वी फॉलो दैट रूल्स प्रॉपरली एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज साइंटिफिक. सो ये दूसरा फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. And most important feature of double entry system is what? The results जो आपको मिलता है are approximate or they are accurate. मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है तो इन फाइनल अकाउंट्स हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको कौन सा प्रॉफिट मिलता है? नेट प्रॉफिट. तो वो जो नेट प्रॉफिट आपको मिला है, दैट नेट प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और इज इट एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? नो, वी हैव डन सम सम्स जहां पे आपको नो फिगर्स भी एग्जैक्ट लास्ट में, से फॉर एग्जांपल 68,491 रुपीज, मतलब वो जो लास्ट में भी 1 रुपया आता है. इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे ना तो 0.50 पैसे, 0.38 पैसे एग्जैक्ट या एक्यूरेट फिगर मिलता है. बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो इज सिस्टमैटिक. You are following certain rules. For every debit you are giving equal and corresponding credit of the same amount. You are recording each and every business transaction in systematic books of accounts. तो आपको जो लास्ट में आंसर मिलता है is not approximate. आपको जो आंसर मिलता है that is what? Accurate. तो आप बोल सकते हो कि ये सब डबल एंट्री सिस्टम का फीचर्स है. एंड जो लास्ट वाला फीचर है ना, एक्यूरेट, यू कैन से इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. मतलब कोई बिजनेसमैन अगर हमको बोलता है, बिकॉज सी वी आर अकाउंटेंट्स, कोई बिजनेसमैन हमारे पास क्यों आएगा हमारा, या कोई बिजनेसमैन हमको क्या बोलेगा कि भाई मुझे मेरे बिजनेस का एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. सो वी डेफिनेटली रेकमेंड सच बिजनेस एंड बिजनेसमैन कि भाई यू शुड प्रिपेयर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू शुड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन यू शुड रिकॉर्ड इट सिस्टमैटिकली एंड लास्ट में जब हम तेरा फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे मैं तुझे एक्यूरेट प्रॉफिट तेरे बिजनेस का दूंगा. तो अभी तक तुमने जो सिस्टम फॉलो किया है टिल द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम. नाउ कैन यू फाइंड एनी डिसएडवांटेज विद दिस सिस्टम? चलो आज पहली बार हम डबल एंट्री सिस्टम का कोई डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं. बिलीव मी देयर इज ओनली वन डिसएडवांटेज. व्हाट इज दैट डिसएडवांटेज? बिकॉज अगर वो डिसएडवांटेज आप बोलोगे तो ही ये चैप्टर का बैकग्राउंड क्रिएट होता है. दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? उसको समझाने के लिए मेरे को 30 सेकेंड्स लगेगा खाली. अगर आप मेरे को डबल एंट्री सिस्टम का डिसएडवांटेज दोगे, हाँ लेंदी होता है तो क्या करेंगे हम लोग? अरे आजकल टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं है. विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल कंप्यूटराइज सिस्टम नाउअडेज, बिग कंपनीज दे डोंट मेंटेन मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट. तुमको क्या लगता है एक्चुअली जाके बुक खोलेगा, उसमें जर्नल लिखेगा, फिर वो लेजर में जाएगा? ये सब आगे का स्टेप्स आर कंप्यूटराइज्ड. बट देर इज वन डेफिनेट डिसएडवांटेज. चलो मैन लेंदी है, फिर क्या बोला इसने, टाइम लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग वन एंड द सेम. आई वॉन्ट वन डिसएडवांटेज. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो थोड़ा अपने पास्ट में जाओ. तो क्या हुआ?
तो वही हो गया ना, लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग। एरर्स होगा तो ठीक है, एरर्स होगा तो हमने पढ़ा है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर हम करेंगे। हाँ तो करना तो पड़ेगा ही ना, आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए और प्लस आपको बोले नहीं हम एरर भी रेक्टिफाई नहीं करेंगे लेकिन हमको एक्यूरेट आंसर भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा दिमाग लगाओ। What is the biggest disadvantage of double entry system? Yeah, maintaining books of accounts under double entry system. It is very simple. Come on. हिंट दो। अच्छा, मैं ऑलरेडी हिंट भी दे दिया तो उसके लिए यू शुड बी इन प्रेजेंट। लोग नींद में बैठे रहेंगे तो क्या? नहीं, ये सब नहीं है उसका डिसएडवांटेज। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज? आज तक हमको सिर्फ एडवांटेज, ये देखो एडवांटेज मैंने लिखा हुआ है कि मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिएगा। एक्यूरेट आंसर चाहिएगा तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, मेरे को लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा बाय द वे, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट लिखेगा कौन? अकाउंटेंट लिखेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेसमैन तो लिखेगा नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन चौथी या पांचवी फेल रहेगा। मतलब मेरे को तो ये सब अकाउंट्स लिखने को आता नहीं है, तो उसके लिए अकाउंटेंट को हायर करेगा, बोलेगा ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तेरे को मेंटेन करना है भाई, लास्ट डेट पे मेरे को मेरे प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। ओके, हो गया हिंट। अभी इससे ज्यादा क्या हिंट दूं? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? अरे एक मिनट, अरे तो उसके लिए अकाउंटेंट रखेंगे ना हम लोग। आपके हिसाब से अकाउंटेंट का क्या पगार रहता है? अच्छा, अकाउंटेंट मतलब कौन? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंट? 12वीं पास वाला किसी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेगा, मतलब थोड़ा रिस्की है, लेकिन वो नहीं, 12th पास का मेरे को आंसर इज नॉट रॉन्ग, बट उसने, हाँ बट ही शुड बी, मतलब कोई अच्छी जगह से पढ़ा रहेगा, उसको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया रहेगा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख सकता है। बट ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं, बीकॉम रहेगा, ठीक है। तो क्या पगार नक्की करोगे? 20,000 रुपया अकाउंट्स लिखने के लिए। अब 20,000 तो देना ही पड़ता है ना आजकल। 15,000 ड्राइवर को देते हैं हम लोग, तो वो बोलेगा बेचारा मैं उससे जो ड्राइविंग करूंगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, 20,000 रुपया, ओके ठीक है। फिर मतलब और कोई एक्सपेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने का कि खाली अकाउंटेंट का पगार बस? बुक्स खरीदना पड़ेगा, मतलब स्टेशनरी का खर्चा रहेगा, मतलब ठीक है 500 रुपये स्टेशनरी, ज़्यादा क्या है, उसमें भी सब उसको खरीद के देना पड़ेगा। पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर, ये सब मैं ही उसको खरीद के दूंगा। बचा और कोई खर्चा है? जब 20,000 रुपये पर मंथ है कि पूरे साल का 20,000 देंगे? अच्छा, ही इज पार्ट टाइम अकाउंटेंट कि फुल टाइम अकाउंटेंट? पार्ट टाइम के लिए 20,000 देगा? अरे पूरे मंथ का है इसको, अभी तेरे को जाना है तो अभी जा, जाने के बारे में अभी मत सोच। हाँ ठीक है, हाँ फुल टाइम अकाउंटेंट रखेंगे, ओके। आप कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ, इतना इज्जत मत निकालो। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता नहीं है। चार्टर्ड अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या करता है? ऑडिट करता है, चेकिंग, वो वंस इन ईयर वो लोग कर देते हैं। ओके, उसके लिए वो पैसा लेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट? बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा लेगा। ठीक है, ठीक है, गुड। चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करने का पैसा लेगा, ठीक है। चलो आगे, पहले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हमारे फुल टाइम अकाउंटेंट का बात करते हैं। फिर और कोई खर्चा है? रिफ्रेशमेंट का खर्चा, ठीक है, पूरे साल का 1,000 रुपये का रिफ्रेशमेंट। 1,000 दिन का 2 चाय पिएगा तो 10 रुपया एक दिन का, तो 10-20 रुपया एक दिन का, तो पूरे साल का 300 दिन का 6,000 रुपया उसका चाय का खर्चा। यानी पगार नक्की हो गया ना 20,000 रुपया। पगार से ज़्यादा कैसे चाय हुआ? ठीक है, हाँ चलो ना, और कोई खर्चा है? हाँ तो हो गया ना, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? हाँ तो इज कॉस्टली टू मेंटेन,
इट इज कॉस्टली टू मेंटेन। कॉस्टली टू मेंटेन मतलब नहीं तो डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने का खर्चा या डबल एंट्री सिस्टम को इंस्टॉल करने का खर्चा या सिंपल लैंग्वेज में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने का खर्चा इज समवेयर अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज पर एनम, क्योंकि 20,000 रुपीज पर मंथ तो फुल टाइम अकाउंटेंट ले लेगा एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग वो अकाउंटेंट घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम थोड़ी करेगा, उसको हम लोग को जगह देना पड़ेगा हमारे ऑफिस में, तो यू हैव टू गिव हिम प्रॉपर केबिन एक्सेट्रा। सो ऑब्वियसली देयर इज रेंट दैट इज इन्वॉल्व, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व, देयर इज स्टेशनरी कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व, देयर इज रिफ्रेशमेंट कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व, इट इज हिज सैलरी दैट इज इन्वॉल्व। तो ये सब खर्चा मेरे को करना पड़ेगा। It depends on the size of the business। तुम्हारा साइज ऑफ द बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो आपको 2 अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो भी खर्चा आप काउंट कर रहे हैं वो सब डबल हो जाएगा। सो डिपेंड्स अपॉन द साइज। अभी पूरा डिपार्टमेंट, अगर आप बहुत सारे कंपनीज में तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेटअप होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टेशनरी एक्सेट्रा। और खाली ये स्टेशनरी नहीं है, because you are entering into so many transactions in every year, there are so many invoices that you have to print। वो हर एक इन्वॉइसिस का तुमको कॉपीज बनाना पड़ेगा, वो इन्वॉइसिस का बॉक्स फाइल्स एक्सेट्रा मेंटेन करना पड़ेगा। सो ये सब खर्चा आपको करना पड़ेगा इफ यू आर डूइंग और इफ यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। एंड ऑल दिस यू आर डूइंग बिकॉज यू वांट एंड में अप्रोक्सीमेट फिगर के एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर्स आपको चाहिए। इमेजिन आप अकाउंटेंट रख रहे हो, आप इतना खर्चा कर रहे हो 3 to 4 लाख रुपीज, चलो 5 लाख रुपीज, क्योंकि लास्ट में मेरे को ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। एटलीस्ट आप पूरे साल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप एक बार उसके बाद से ऑडिट तो करवाओगे। क्योंकि ऑडिट क्यों करवाओगे आप? क्योंकि आपको ऑडिट के बेसिस पे या जो भी ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें एरर्स फाइंड आउट करेगा। हो सकता है तुम्हारे अकाउंटेंट ने, बिकॉज अल्टीमेटली तो वो बीकॉम पास है, he cannot write it exactly, so उसने थोड़ा बहुत मिस्टेक्स क्या रहेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करवाएगा, उसके बेसिस पे तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे। सो मॉडल ऑफ द स्टोरी, ऑल सेड एंड डन, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? इफ यू वांट टू समराइज इन वन वर्ड, डबल एंट्री सिस्टम इज व्हाट टू फॉलो एंड मेंटेन, costly to maintain and it is costly to follow because there are a lot of expenses that are involved, somewhere around 3 to 4 lakh rupees per annum in maintaining double entry system. If I am a businessman and if I want accurate answers, then I have to spend this month or this much to get accurate answer. That is why there is one chapter called as rectification of errors, because अगर books of accounts में errors है तो मैं इतना खर्चा कर रहा हूं इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एंड ऑफ द ईयर मुझे पता चलता है कि जो प्रॉफिट या लॉस हमने फाइंड आउट किया है इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट बिकॉज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर है, तो मेरा इतना सब खर्चा करने का मतलब क्या हुआ? तो फिर मैं अकाउंटेंट को रख क्यों ना हूं? सो इफ आई एम कीपिंग एन अकाउंटेंट, इफ आई एम स्पेंडिंग सो मच एंड आफ्टर स्पेंडिंग सो मच, इफ माई अकाउंटेंट इज हैविंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माई आंसर और एंड रिजल्ट या लास्ट में जो प्रॉफिट मुझे मिला है, लास्ट में समझो ना तुम्हारा अकाउंटेंट आता है बोलता है बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, जैसे तुम लोग आते हो बोलते हैं सर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, तो लास्ट में देन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज टू एंटर एंड फिर अल्टीमेटली तुमको बताना पड़ता है कि देख तेरा इधर मिस्टेक है ना, इसकी वजह से तेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली एज अ बिजनेसमैन मैं इतना खर्चा करूं क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे नहीं पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे लिखना है, मैंने किसी के भरोसे छोड़ा है। इफ ही इज राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही शुड मेंटेन इट एक्यूरेट बेसिस। इधर तक समझ में आया? ओके, नाउ कैन यू टेल मी, कैन ऑल बिजनेसेस अफोर्ड टू कीप दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो, व्हाई? स्मॉल बिजनेसेस, व्हेन आई से स्मॉल बिजनेसेस का मतलब है, अभी से फॉर एग्जांपल जो स्मॉल बिजनेस है उसका साल का प्रॉफिट ही 6 लाख रुपीस है, तो वो ये सब खर्चा करेगा। से फॉर एग्जांपल आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन जिसका साल का प्रॉफिट 6 लाख रुपया है, विल आई कीप एन अकाउंटेंट एंड स्पेंड 3 लाख रुपीस ऑन डबल एंट्री सिस्टम? सपोज मेरा डबल एंट्री सिस्टम और ये सब मेंटेन करने का खर्चा 3 लाख रुपया है, मतलब मैं एक अकाउंटेंट रख रहा हूं, मैं वो लोग सबको सैलरी दे रहा हूं एंड एंड में अकाउंटेंट मेरे को बोलेगा कि भाई जो तेरा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो अब सिर्फ 3 लाख बचा है क्योंकि बाकी का 3 लाख तो तुमने इसके ऊपर खर्चा कर दिया है। तो आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन, I don't want to spend so much. I don't want to spend on maintaining books of accounts under double entry system. तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करता हूं। I repeat the statement. I don't maintain books of accounts. Who does not maintain books of accounts? Small businesses. See, अभी small businesses का ना कोई definition नहीं है।
अभी किसी का 15 लाख का प्रॉफिट रहेगा वो भी स्मॉल बिजनेस हो सकता है ना, किसी का 25 लाख का प्रॉफिट रहेगा वो भी स्मॉल बिजनेस हो सकता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस. अभी ऐसा नीचे उतरो, ये बिल्डिंग के नीचे एक कॉर्नर पे एक दुकान है, वो चाय वाला है. अभी वो तुम देखोगे तो इट इज अ स्मॉल बिजनेस. अभी वो स्मॉल बिजनेस, डू यू थिंक वो नीचे जो चाय वाला जो खड़ा बैठा है या दुकान खोल के बैठा है, ही विल बी मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मतलब उसका साल का प्रॉफिट रहेगा 2,34,946 रुपीज. उसमें से वो सोचेगा चलो मैं डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता हूँ. डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने का फुल टाइम अकाउंटेंट बिठाएगा वो चाय वाले के पीछे, बोलेगा इधर इतना बड़ा जगह मेरे को क्यों चाहिए, एक छोटा सा काउंटर दे देते हैं चाय वाला. मतलब वो सोचेगा एक कंप्यूटर दे देता हूँ इसको, ये बैठ के रोज देखेगा कितना सेल हो रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहा है. पूरे साल में खर्चा पता चला 3.5 लाख रुपए है वो अकाउंटेंट बिठाने का. एंड मेरा जो प्रॉफिट था जो 2,34,000 समथिंग था, नाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू लॉस, क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, एक्यूरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया. बोलते सुबह ऊपर एक क्लासेस है, नीचे एक सर आए थे चाय पीने के लिए, उसने मेरे को बोला तू बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों नहीं मेंटेन करता है, तेरे को एग्जैक्ट प्रॉफिट मेंटेन करें. तो मैंने एग्जैक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के चक्कर में एक अकाउंटेंट रखा, एंड जो मेरा प्रॉफिट था वो पूरा खत्म हो गया, एंड दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लॉस. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट विच बिजनेसेस? Small businesses. Can small businesses afford to maintain proper books of accounts? No. Why? Is only one reason, that is costly. So they do not maintain books of accounts. First of all, they don't maintain only books of accounts. They do not maintain books of accounts. बराबर है? That means they are following single entry system. What is single entry system का definition? सिंगल एंट्री सिस्टम का डेफिनेशन इज एब्सेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. हो गया सिंगल एंट्री. हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर. एक तू है ना, पहले तो 2 सब्जेक्ट मिस नहीं कर बाबा, इधर पहले एक सब्जेक्ट मान पढ़ रहे हैं हम लोग. व्हाट इज डबल एंट्री, सॉरी व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम इज एब्सेंस ऑफ विच सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम. मतलब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं? रीजन नंबर 1, मुझे आता ही नहीं है. आप एक सिंपल एग्जांपल देखो, नीचे उतरो, नीचे चाय वाला, तुम सब लोग ने देखा है वो चाय वाला, उसको कभी चाय पीते पीते देखो, इसको किस तरह आता रहेगा डबल एंट्री सिस्टम? तुमको लगता है उसने 11th स्टैंडर्ड किया रहेगा? नहीं. सो ही डज नॉट नो हाउ टू मेंटेन. He does not know how to maintain books of accounts. If you don't have knowledge, can you buy knowledge? अरे किसी को हायर कर सकते कि नहीं? हाँ, लेकिन वो हायर क्यों नहीं कर रहा है फिर? अरे तू खुद नहीं कर सकता है, मैं समझता हूं, बट कैन ही हायर somebody to write books of accounts? हाँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है. What is the problem? It is costly. He cannot afford. उसका बिजनेस का प्रॉफिट इज 2,64,391 रुपीज है, उसमें कहाँ वो 3-4 लाख रुपए का खर्चा करेगा? So he does not want to maintain books of accounts under double entry system. So what is simple definition of single entry system? Is absence of double entry system. I am sure you go and ask him, do you have books of accounts? तो पहले तो बोलेगा what is meaning of books of accounts? मेरे को वो समझाओगे आप? बोला नहीं, अभी हम लोग अकाउंट्स का लेक्चर था, हमको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके नाम आपको पूछ रहे, आप बिजनेस चला रहे हो. मेरे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है. बराबर है? ओके. नाउ इससे आगे बढ़ते हैं. दैट इज व्हाई देयर इज वन सिस्टम. व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम? सबसे पहले नाम में ही प्रॉब्लम है. नहीं, नाम में प्रॉब्लम है. सिंगल एंट्री क्या बोला गया इसको? सिस्टम. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है. You cannot call it as system because single entry system is unsystematic. Unsystematic मतलब ना, कभी आप देखो, I don't know whether you have observed, छोटे छोटे बिजनेसेस क्या करेंगे मालूम है? ऐसे एक छोटा सा डायरी रखेंगे. जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, डायरी खोलेंगे और उसके अंदर ऐसा लिख देंगे अपने भाषा में कुछ भी. यस और नो. से फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इंफॉर्मेशन रहेगा जो हर बिजनेसमैन के पास रहेगा. एनीबडी, व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन एनी बिजनेसमैन विल हैव? कुछ भी. ये हम लोग छोटे बिजनेसमैन का बात कर रहे हैं. सपोज नीचे चाय वाला है,
वो पूरे बिल्डिंग में इधर चाय सप्लाई करता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ही विल हैव? यस करेक्ट. मतलब हु इज हिज डेटर एंड हु इज हिज क्रेडिटर. अभी वो सब याद रखेगा नहीं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेगा. क्यों नहीं लिखेगा? उसको आता ही नहीं है. तो अकाउंटेंट रखे, कॉस्टली है, लेकिन फिर भी क्या करने का, तो क्या करेगा, एक डायरी मेंटेन करेगा. जितने यहाँ पे सपोज ये 10 ऑफिस में प्रोवाइड करता रहेगा ना चाय, तो 10 बुक बना के रखेगा. तो ऊपर से आएगा, फोन करेगा, भाई 5 चाय भेज देना. बोला बुक में लिख लेना. तो क्या लिखेगा बुक में? हाँ, बुक में क्या पूरा ऐसा सिस्टमेटिक अकाउंट बनाएगा. अकाउंट का तो उसको फॉर्मेट भी नहीं आता रहेगा. हाँ, तो क्या करेगा वो, ऐसा एक छोटा सा ऐसा लिखेगा. टी फॉर्म भी नहीं है, तो मैं अपने को आता है टीम फॉर्म. ऐसा बुक रहेगा, ये बुकलेट रहेगा. ये बुक में ऐसा लिख देगा रूम नंबर या ऑफिस नंबर सो एंड सो, 5 चाय 5 टी, ऐसा पूरे महीने का टोटल करेगा. और लास्ट में उसको बता देगा भाई ये जो ऑफिस है उसके पास है 1500 रुपये लेना है. सो इज दिस सिस्टमेटिक? नो, इट इज अनसिस्टमेटिक. अच्छा, इज ही फॉलोइंग एनी रूल्स? मतलब ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड, पर्सनल अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश किसी कस्टमर ने दिया तो कैश जब ले रहा है तब वो सोचेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब दिस सिस्टम इज अनसाइंटिफिक एंड दिस सिस्टम इज inaccurate. This is inaccurate. Listen carefully. Why this is inaccurate? वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा. But first of all, this system is unscientific. It is unsystematic. You don't follow systematic books of account. In fact, you will be shocked if I say I cannot teach you double single entry system. क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है. जो सिस्टमेटिक है वो सिखाया जा सकता है कि अनसिस्टमेटिक है वो सिखाया जा सकता है. जो सिस्टमेटिक है, जो साइंटिफिक है, वो सिखाया जा सकता है ना. आई कैन टीच यू रूल्स, आई कैन टीच यू सिस्टमेटिक. हम लोग ने अभी तक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा है वो सब सिस्टमेटिक था. प्रॉपरली जर्नल एंट्री पास करो, लेजर में डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उस सिस्टमेटिक चीज को सिखाया जा सकता है. अनसिस्टमेटिक चीज को कैसे सिखाया जा सकता है? दैट इज वाई डेफिनेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. नाउ आई विल आस्क यू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है उसको प्रॉफिट कैसे मिलता है? बाय प्रिपेयरिंग व्हाट? यहां पर लास्ट में कौन से अकाउंट से प्रॉफिट मिलता है? यहां पर कौन से अकाउंट से मिल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसको नेट प्रॉफिट मिलता है. डू यू एग्री विद दिस? ओके, नाउ आई एम आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ध्यान से सुन के आंसर दो. सपोज थोड़ी देर के लिए मैं छोटा बिजनेसमैन हूं. छोटा बिजनेसमैन मतलब आप समझ लो नीचे वो चाय वाला. इज ही डूइंग बिजनेस? Yes. Is he interested in knowing profit? No. बोलता है बिजनेस चलने दो, राम भरोसे, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना चाय चल रहा है. एक तो 3rd क्लास चाय बेचता है वो. सबसे पहले रियली पथेटिक चाय है, मैंने इसका चाय पिया है, इट्स हॉरिबल. हाँ, एनीवेज वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ क्वालिटी. उसका इसलिए चल रहा है क्योंकि दूसरे नजदीक में कोई चाय वाला नहीं है. मैं तो सोच रहा हूँ चाय का मैं खुद एक टपरी डाल दूँ, ज्यादा अच्छा कमाई होगा. हाँ हाँ, ये देखो नामकरण भी हो गया. हम लोग नाम भी रख देंगे. ठीक है, चलो गुड. चलो नाउ आई एम गिविंग यू 2 थिंग्स. आप लोग सीए कर रहे हो. सीए करने से पहले थोड़ा बहुत तो अकाउंट जानते ही हो अभी आप लोग, क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट्स कर दिया है. तो मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मैं आपके पास आया हूँ और मुझे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जानना है. तो आप मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे? मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है. आई डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. व्हाई आई डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आई थिंक आई हैव कन्विंस्ड यू. बिकॉज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉस्टली फॉर मी, और मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने को आता भी नहीं है. आई कांट अफोर्ड सर्विसेज ऑफ अ फुल टाइम अकाउंटेंट. तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया है. मतलब आई हैव नॉट फॉलोड डबल एंट्री सिस्टम. मेरे पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द ईयर में आई वांट टू नो माय प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. तो मैं आपके पास आया हूं. तो अब आप मुझे मेरे प्रॉफिट या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैसे ढूंढ के दोगे? यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस. स्लोली, वन बाय वन. हाँ, how can it be accurate? Obviously. चलो,
क्या मैं 10 रुपए का चाय बेचता हूँ? वो सब मालूम नहीं है मेरे को। पूरे साल में कितना खरीदा वो सब का रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। तो मैं अकाउंटेंट चेंज कर दूंगा। चलो, और कोई अकाउंटेंट है? वो नहीं मालूम। वो यार दिन में मैं थोड़ी गिनते बैठेगा कितना कब बैठा। नहीं है मेरे को। नहीं है मेरे को। गले में कितना पैसा पड़ा है? चलो, कोई तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा। तो मैंने 31 मार्च 2024 के दिन मेरे पास गले में कैश कितना पड़ा है वो मैं काउंट करके आपको दे दूंगा बाय समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल काउंटिंग ऑफ कैश। हाँ, वो मेरे पास है। तो मैंने काउंट किया, मेरे इसमें 752 रुपीज पड़ा है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चालू? वो चालू भी कभी भी की बिजनेस कितने से चालू किया था क्या मालूम? वो रहेगा कुछ 10-20 हजार रुपए से चालू किया था, याद नहीं मेरे को। ओके, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट ड्राइंग्स। ठीक है, पता नहीं। मेरी बीवी ने बोला आज ब्रेड लेके आओ तो मैं लेके जाता हूँ। कल बोला दूध लेके आना तो लेके जाता हूँ। ऐसा बिजनेस के गले में से पैसा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ मैं। हाँ, बट ऑन एन एवरेज यू कैन आस्क मी कि आपके महीने का घर का खर्चा कितना है। तो ठीक है, मैंने महीने का घर का खर्चा 2000 रुपया है, एग्जाम्पल। बोलो और। नहीं मालूम। नहीं पता। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डू यू रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू 3 months बैक एंड यू आर आस्किंग मी व्हाट हैपेंड 365 days? डू यू थिंक यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेंबर एवरी डे कि मैं कितना लीटर आज 2 लीटर खरीदा, कल 5 लीटर खरीदा? उसका दिन का मेरे को नहीं मालूम है कितना लीटर खरीदा। मेरे को तो फालतू क्वेश्चन मत पूछो, मैं अकाउंटेंट सच में चेंज कर देगा। खाली तुम 4 ही जन बोलोगे। आप चारों का मौन व्रत रखा है आज आपने? नहीं क्या अभी तक सोच ही रहे? अरे मुझे नहीं मालूम है मेरा परचेज कितना है, मुझे नहीं मालूम है मेरा सेल कितना है, मुझे नहीं मालूम है मेरा एक्सपेंसेस कितना है। और चलो मैं एक आध एक्सपेंस आपको दे भी दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि बिल तो इलेक्ट्रिसिटी आता है। बाकी का एक्सपेंसेस मुझे नहीं पता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, बाकी सब एक्सपेंसेस का डिटेल नहीं है मेरे पास। 1-2 एक्सपेंसेस का रहेगा डिटेल मेरे पास, 2-3 एक्सपेंसेस। मेरे को तो सबसे पहले एक्सपेंस मतलब मालूम भी नहीं है, तुमने बोला तब मैंने सीखा नया वर्ड एक्सपेंसेस। प्लीज आप मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की नजर से मत देखो। भले मैंने कपड़ा ऐसा, मैंने सोचो मैं फटाफटा कपड़ा पहन के आया हूँ, भले मेरा छोटा बिजनेस है, वो मेरे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो मेरे को ऐसा परचेज सेल ने सब मत पूछा करो, मेरे पास नहीं है कुछ भी डिटेल। बट फिर भी मुझे प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना ही है, मैं करके ही जाऊंगा 10 बजे के पहले। हाँ, बैड डेट्स का मतलब क्या है? नहीं, अरे मेरे को अब सच में अकाउंटेंट चेंज करना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हो बोल दो, हम नहीं कर सकते, मैं दूसरे किसी के बात चलेगा। अरे अभी तो मैंने थोड़े टाइम पहले बताया कि मैं और एक चीज मेंटेन करूंगा। हाँ, तो डायरी मतलब उसमें क्या रहेगा? वो डायरी में कितने कितने लोग के पास से पैसा लेने का है, मतलब कैन वी से डेटर्स। ठीक है, चलो डेटर्स का इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और क्या इंफॉर्मेशन आप मेरे पास से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? हाँ, तो क्रेडिटर्स वो भी मैं बता सकता हूँ। चलो और। हाँ, तो ऑब्वियसली। अरे तुमको तो पता है ना, ये मैं तुम्हारे जगह से लिख रहा हूँ, मेरे को तो ये लिखने को भी नहीं आता है। मैं तो छोटा बिजनेसमैन हूँ। चलो और क्या इंफॉर्मेशन आप मुझे पूछ सकते हो? अरे एक आध एक्सपेंस। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट यू वांट ऑल एक्सपेंसेस और फ्यू एक्सपेंसेस। हाँ, तो मेरे पास ऑल एक्सपेंसेस का डिटेल नहीं है। सबसे मेन एक्सपेंस परचेस का ही डिटेल नहीं है मेरे पास। मैं कितना दूध परचेस करता हूं मुझे पता ही नहीं है पूरे साल में। अरे कैन वी इसी को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग? ये सब कौन है? कैश, डेटर, ये सब के लिए आपको एक नाम पढ़ाया गया है ना। व्हाट इज कैश, व्हाट इज डेटर्स? अरे ये दोनों कौन है, कैश और डेटर्स?
असेट है, बरोबर है। तो क्या मेरे बिजनेस में दो ही असेट होगा, कैश एंड डेटर? नहीं। हाँ, तो फर्नीचर होगा कि नहीं होगा मेरे पास? हाँ, तो ये मेरे पास फर्नीचर है, देख लो, एक टेबल है, काउंटर है, गैस है, एक्सेट्रा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो आप क्या करोगे उसका? अभी मेरे पास उसका बुक वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि मैंने फर्नीचर अकाउंट तो बनाया है नहीं है। तो उसका वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे फर्नीचर का? मार्केट से किसी को बुलाओगे, भाई वैल्यूअर को, भाई इसके पास ये जो है उसका वैल्यू बता कितना है। तो बोलेगा ठीक है चलो फर्नीचर। इज दिस एग्जैक्ट फिगर और एक्यूरेट, सॉरी, इज इट एग्जैक्ट फिगर और अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट। ये जो फर्नीचर का आप वैल्यूएशन कर रहे हो, ये जो फर्नीचर का वैल्यूएशन कर रहे हो, ये एग्जैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट है? अप्रोक्सीमेट। चलो और क्या क्या हो सकता है? बस मेरे बिजनेस में तीन ही असेट होता है, फर्नीचर, कैश, डेटर्स। तो क्या पूछोगे? लैंड। अरे मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूं, मेरा लास्ट में तू देखेगा तो मेरा 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट निकलेगा, तो मेरे पास करोड़ों का लैंड कहां से आएगा? गांव में है लैंड, वो मेरे पापा का है लैंड। अरे सैलरी एक्सपेंस, फिर से मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, मेरे पास एक एक एक्सपेंस का डिटेल आप ले लो, लेकिन मेरे पास सब एक्सपेंस का डिटेल नहीं है। आई कैन नॉट प्रिपेयर trading and profit and loss account of such business because you don't have detail of all expense and incomes. आप मेरे को एक एक एक्सपेंस का डिटेल मत पूछो, मेरे पास नहीं है। अरे नहीं समझ रहे, मैं तीसरी बार बोला। अरे बैंक अकाउंट रहेगा तो बैंक बैलेंस पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है? एक्सक्यूज मी, आज सबके पास बैंक अकाउंट है, आपके नाम पे भी होना चाहिए बैंक अकाउंट। तुमको पता नहीं है कौन सा गवर्नमेंट है अभी? 10 रुपए का भी हम लोग जीपे करते हैं आजकल, और एवरी बिजनेस के बाद जीपे लगा हुआ है। हाँ तो, और उसके पास बैंक अकाउंट नहीं रहेगा तो मतलब मैं जीपे कर रहा हूँ तो उसके ऊपर का कैश छलक रहा है उसके पास से, उसके बैंक अकाउंट में ही जा रहा है ना। ये क्या बोल रही है यार? बैंक अकाउंट किसके पास रहता है? मैं ना, एक अम्मा है मुलुंड में, रास्ते पे बैठती है बेचारा, वो इसका इडली डोसा का बैटर लेने को, वो रास्ते पे बैठते हैं ना, उसके पास भी जीपे का ये है बेचारे। 30 रुपए का आधा किलो देती है, 60 रुपीज केजी, क्योंकि ऐसा हमको ही करना पड़ता है, क्योंकि स्टेशन के उधर बैठते हैं ना, तो हमको फोन आ जाता है लेके आना। हाँ तो हाँ, ये देखो तो बीवी लोग आलसी लोग रहते हैं ना, उनको घर से निकलना नहीं है। मैं भूल गया कि सब इधर औरतें बैठी हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ही होती हैं। ओके, एनीवेज, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। क्या बोल रहा था मैं, किधर का किधर बात लेके जा रहे हैं हम लोग? हाँ, बैंक अकाउंट सबके पास होता है, झूठ बोल रही है। हाँ फिर, अरे मेन इंपॉर्टेंट एसेट तो रह गया जिसका आप 2 इफेक्ट देते हो, फर्स्ट एडजस्टमेंट में ही आता है। हाँ तो स्टॉक रहेगा कि नहीं मेरे पास? अरे कैसे याद क्या रहेगा? स्टॉक सामने दिखेगा ना, ये रहा स्टॉक पड़ा है। स्टॉक को हम फिजिकली काउंट भी तो कर सकते हैं ना भाई, तेरे पास ओके कितना टी बैग्स, टी का पैकेट्स पड़ा है, कितना जो भी है, स्टॉक काउंट करो भाई इसका। चलो, और 31 मार्च को कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है वो भी तो पता चलता है। चलो ये सब मैंने बना लिया है, ये सब मैंने बना लिया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ऑन द राइट हैंड साइड? फर्नीचर, कैश, डेटर्स, बैंक, स्टॉक, ये सब को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट से मिला है? नहीं। फर्नीचर कैसे मिला? फिजिकल वैल्यूएशन से मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल वैल्यूएशन। कैश कहां से मिला? फिजिकल काउंटिंग। डेटर्स कहां से मिला? या तो मेमोरी से मिला मेरा, या तो डायरी से मिला। हाँ पर मेमोरी मतलब वो डायरी, सिंपल लैंग्वेज में। बैंक बैलेंस कहां से मिलेगा? तो एक हम लोग ने बीआरएस चैप्टर पढ़ा है, हाँ, बैंक स्टेटमेंट। बैंक से मतलब क्या? हाँ। स्टॉक कैसे मिलेगा? अरे फिजिकल काउंटिंग बोलते हैं उसको। हमें सिंपल क्वेश्चन होगा, ये रूम में कितना एसी है? कैसे किया? हाँ तो ऐसे ही स्टॉक मिलता है। ये रूम में कितना बेंचेस है? तो ऐसा बैठ के काउंट करोगे ना, इतना का बेंचेस है, तो काउंट करके हमको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल काउंटिंग। आगे जाके जब आप ऑडिटिंग करोगे ना, किधर जाओगे ऑडिट पे, तो फिजिकल काउंटिंग दिया जाएगा आपको। जाओ चलो फिजिकल काउंटिंग, हाँ फिजिकल काउंटिंग करना पड़ता है। मेरा एक दोस्त, अरे आर्टिकलशिप में बोल रहा हूँ, सीए बैठ के तो तू बैठ ना जगह पे, एक जगह पे।
और तू सीए बन जाएगी, उसके बाद भी इंटरनल ऑडिटर रहेगी, तो तुझे जाना पड़ेगा तेरे टीम के साथ। भले तू घर पे बैठी रहे ना, वो लोग जाएंगे और तेरे नीचे आर्टिकल काम करेंगे वो लोग जाएंगे। हाँ, लेकिन पहले तब तक तू आर्टिकल बनेगा कि नहीं। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग है ना, एक बार मेरा एक फ्रेंड था, उसने ना आरबीआई का ऑडिट किया था। आरबीआई समझता है कौन है? हाँ, तो आरबीआई का है ना गोल्ड रिजर्व होता है, वो मालूम है? हाँ, तो वो लोग के पास गोडाउन है, वो गोडाउन खोला तो ऐसा गोल्ड का स्लैब्स था, तो उसका उसने फिजिकल काउंटिंग किया। ऐसा एक मेरा दोस्त था। फिर उसने एक एमआरएफ, मालूम है एमआरएफ? एमआरएफ टायर का कंपनी है एमआरएफ। हाँ, तो वो लोग का गोडाउन में जाके ऐसा टायर्स रहता है, वो सबका फिजिकल काउंटिंग। तो स्टॉक किससे मिलता है? फिजिकल काउंटिंग से मिल जाएगा मेरे को। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ सबको करना पड़ता है। हम लोग तो छोटा मोटा ऑडिट करते थे, इतना बड़ा बड़ा ऑडिट नहीं करते थे हम लोग। हम लोग स्मॉल फर्म में थे। गलत जगह पे मत जाओ, ना बोल देने का, मतलब हम लोग ये सब नहीं करते। हाँ, पर खाली काउंट करने को मिलता है, कुछ मिलता नहीं है उसमें। ठीक है, गंदी सोच। मतलब अभी इसके लिए इसको सीए बनने का है, मैंने सुन तभी मेरे को पता चला। ठीक है, चलो ये सब क्या है तुम्हारे राइट हैंड साइड पे लिखा हो? असेट्स। वो सब क्या है? लायबिलिटीज। ये दोनों टैली हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होएगा? बैलेंस शीट तो हमारा टैली होता है। क्यों टैली नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे तो भी है, तो टैली तो होना चाहिए ना। समथिंग इज मिसिंग। यस, व्हाट इज मिसिंग? ये सब बकवास है। क्या व्हाट इज मिसिंग? कैपिटल इज मिसिंग। तो यहां पे जो हमको कैपिटल मिला दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या एट द एंड ऑफ द ईयर? अरे ये सब हम कौन से डेट पे कर रहे हैं? एंड ऑफ द ईयर पे। तो ये जो कैपिटल है, अच्छा ये जो कैपिटल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मिला के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके मिला? हाँ, ये सब का टोटल करोगे आप। सपोज ये सब का टोटल इज 5 लाख, जस्ट एग्जांपल्स। ये सब का टोटल इज 5 लाख एंड ये दोनों का टोटल इज से फॉर एग्जांपल 3 लाख, जस्ट एग्जांपल। तो आपको कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। क्या मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर। हाउ मच इज बैलेंसिंग फिगर? 2 lakhs। और इससे हमको पता चलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, दैट 2 lakhs इज बैलेंसिंग फिगर। चलो, कैन यू सी ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल का एक नाम दो। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? अरे लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज है, ये राइट हैंड साइड पे एसेट्स है, तो ये टेबल को हम क्या बुलाएंगे? नहीं, इसको हम बैलेंस शीट नहीं बुलाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दिस इज कॉल्ड एज विच स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? इसको क्यों क्लोजिंग बोला है? एंड ऑफ द ईयर पे। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट। इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो भी फिगर्स होते हैं वो प्रॉपर लेजर अकाउंट से आते हैं। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैं आपको 2 डिफरेंस बता सकता हूं। डिफरेंस नंबर 1 एंड द मेन डिफरेंस, बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट्स या फिगर्स रहते हैं, हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, उसमें जो फिगर्स आते हैं वो प्रॉपर लेजर अकाउंट से आए हुए हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब फर्नीचर का जो बैलेंस रहेगा ना, फर्नीचर अकाउंट से आया है। यहां पे फर्नीचर का जो अमाउंट रहेगा वो फर्नीचर का अमाउंट एक्चुअली हैज नॉट कम फ्रॉम फर्नीचर अकाउंट, इट हैज कम फ्रॉम वैल्यूएशन और इट हैज कम फ्रॉम मेमोरी। इट इज नॉट एग्जैक्ट फिगर ऑफ फर्नीचर, so that is why it is not called as balance sheet. And second, बैलेंस शीट हमारा हमेशा टैली होता है। यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली नहीं होएगा, कैपिटल इज टेकन एज बैलेंसिंग फिगर। तुमको समझ रहे हैं? 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस? टैली नहीं होता ये, क्योंकि हमेशा आपको क्या मिसिंग रहेगा? पहला ही क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, उसके अंदर क्या मिसिंग रहेगा? कैपिटल मिसिंग रहेगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डबल एंट्री सिस्टम में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। इनफैक्ट कैपिटल अकाउंट से कैपिटल का बैलेंस मिलता है, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और हमारा बैलेंस शीट लास्ट में टैली होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली नहीं होता है, इसमें हमेशा कैपिटल को क्या लेना पड़ता है? बैलेंसिंग फिगर या डिफरेंस फिगर। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। क्लोजिंग मतलब एंड ऑफ द ईयर।
ऐसा ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आई विल प्रिपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1/4/2023. सो 1/4/2023 पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज विच स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. इफ यू राइट बैलेंस शीट 11th स्टैंडर्ड में यू कैन एस्केप बट नॉट इन फाउंडेशन. इफ यू राइट बैलेंस शीट इट विल बी रॉन्ग. कोई बता सकता है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमको कौन सा कैपिटल मिलेगा? जैसे हम लोग को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्लोजिंग कैपिटल मिला, कैन यू गेस कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमको कौन सा कैपिटल मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल. मतलब ये सब हमको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में. अब यही छोटा बिजनेसमैन लास्ट ईयर भी तो गया रहेगा ना प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए. यस और नो? नहीं 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 सर, अगर फर्स्ट ईयर रहेगा तो बिजनेस का तो पता रहेगा ना साल में कितना से चालू किया. अरे बैंक बैलेंस में तो रहेगा ना अमाउंट. एक मिनट ना, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसको पता नहीं रहेगा कि उसने बिजनेस कितने से चालू किया, क्योंकि उतना पैसा वो घर से लाया रहेगा. 2 लाख 3 लाख कुछ तो मैं घर से लेके आया, तो उतना तो फिगर मेरे को याद था कि नहीं स्टार्टिंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. बट ये चैप्टर में ऐसा कोई सम नहीं है विच इज फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस. आपको हमेशा रनिंग बिजनेस का ही सम आता है. तो जैसे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे वैसे ही आप कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से आपको कौन सा कैपिटल मिलेगा? ओके, ओपनिंग कैपिटल आपको कैसे मिलेगा? तो जो आपका एसेट्स है वो एसेट्स आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मिलेगा. उसमें से आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर का लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ओपनिंग कैपिटल. दिस ओपनिंग कैपिटल विल ऑल्सो बी टेकन एज विच फिगर? बरोबर है. से फॉर एग्जाम्पल माई ओपनिंग कैपिटल इज 1,50,000. जस्ट एग्जाम्पल. एक मिनट, तुम लोग मेरे को घुमा रहे हो. मैं इधर आया था प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, तुमने मेरे को कैपिटल फाइंड आउट करके दे दिया. यू आर नॉट अ गुड अकाउंटेंट. अच्छा, अभी तक प्रोसेस चालू है, ठीक है. दिस इज स्टेप नंबर 1. बोलो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? अगर तुम लोग जाग रहे हो तो बोलो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ये 2 स्टेप हो गया. अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमको कौन सा कैपिटल मिला? ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से क्या मिला? क्लोजिंग कैपिटल. ये 2 चीज हमको मिल गया. बहुत दूर का सोच रहे. ये 1,50,000 है, ये 2 लाख है. मेरा कैपिटल 1,50,000 का 2 लाख हो गया. क्यों? ड्राइंग्स हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. अरे ये कैपिटल चेंज किसके वजह से होता है? बस खाली प्रॉफिट. ये फिर से परचेज सेल पे पहुंच गई यार. ये तो व्हाट इज द प्रॉब्लम मन में? मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आप आंसर दे रहे हो. कैन वी हैव द प्रोसेस? हाउ मच इज माई ओपनिंग कैपिटल? ओके, हाउ मच इज क्लोजिंग कैपिटल? अब आप मुझे बोल सकते हो कि कैपिटल कौन से ट्रांजैक्शंस के वजह से चेंज होता है? प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करेंगे? यू प्लीज थिंक फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल. मुझे यहां से लेके यहां पे आना है. आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल टू क्लोजिंग कैपिटल. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द जर्नी ऑफ फाइंडिंग आउट क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल? यहां से आप स्टार्ट करके मुझे क्लोजिंग कैपिटल पे लेके जाओ. आप उल्टा मत आओ. मेरे को ओपनिंग कैपिटल से चालू करके क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है. तो मेरा कैपिटल चेंजेस बिकॉज ऑफ हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस? एक तो ड्राइंग्स की वजह से. ड्राइंग्स को हम कैपिटल में क्या करते हैं? माइनस. इतना पता है? ओके. तो ड्राइंग्स माइनस कितना करते हैं? इनफैक्ट किसी ने तो पूछा भी था पूरे आप साल में कितना विड्रॉ करते हो. अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं दे नहीं सकता हूं, सो दिस विल बी गिवन फ्रॉम मेमोरी.
कि भाई नॉर्मली ऑन एन एवरेज 700 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ। किसी को भी अपने घर का खर्चा तो बता रहेगा कि नहीं? कभी जाओ अपने फादर को पूछो अपने घर का खर्चा कितना है पर मंथ, बोले अचानक क्यों पूछ रहा है आज? तो माइनस ड्रॉइंग्स। ओके, इज दिस द ओनली ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैपिटल चेंज होता है? नो। तो बोलो विच इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? मैं इसके पहले मैं बेहोश हो जाऊं, मैं बैठ जाता हूं, आप लोग सोचो आराम से। हो गया बोल के अभी? हाँ, स्टिल माई क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। और चलो मैं हिंट दे देता हूँ, एक चीज प्लस होगा और एक चीज प्लस होगा तो ये इक्वल टू, अब ये दो फिल इन द ब्लैंक करके दो। मेरा कैपिटल किसके वजह से चेंज होगा? प्रॉफिट। ओके चलो, प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे? हाँ, अभी सोचने का जरूरत नहीं, प्लस तो मैंने लिख दिया है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम लोग के बिजनेस में प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं है। ठीक है चलो, और एक है जिस जो कैपिटल में ऐड होगा। आराम से सोचो, तब तक मैं 2 मिनट सो जाता हूँ, वो सब बाद में करेंगे। इफ यू कैन स्लीप इवन आई कैन। चलो जल्दी, इट इज वेरी सिंपल। मेरा कैपिटल किसकी वजह से बढ़ता है? और एक की वजह से बढ़ेगा। मेरा बिजनेस में कैपिटल कब बढ़ेगा? जब जब मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मैंने एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आके नहीं बोलने का कि ये मेरे को आता था। टिपिकल स्टूडेंट नहीं बनने का। हम लोग यहाँ पे क्या पैसा क्या बोल रही है ये? डोंट ब्लेम योर फेलियर ऑन मी। देखो यहाँ पे हम स्टूडेंट को इवॉल्व करवाते हैं, मतलब हम सब आंसर्स तुम्हारे पास से ही लेते हैं। वाई शुड आई टेल यू ऑल दिस? यू शुड गिव मी दिस। ऑल कॉमन सेंस, लॉजिकल। पूरे साल में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया रहेगा वो किसी बिजनेसमैन को मालूम नहीं रहेगा। बिलीव मी, एनी बिजनेसमैन वुड ऑलवेज नो हाउ मच मनी ही हैज इन्वेस्टेड एंड हाउ मच मनी ही स्टिल इन्वेस्टिंग इन हिज बिजनेस। हर साल थोड़ा थोड़ा मैं कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलो क्या पूछा था? अरे आपने पूछा था कि कैपिटल जब बिजनेस चालू किया था तब कितना था? बिजनेस चालू किया था उसका कैपिटल क्या? मैं आज क्या करूं? 15 साल हो गया मेरे बिजनेस को, 5 साल हो गया मेरे बिजनेस को। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। सो आई एम नॉट फाइंडिंग आउट आफ्टर 5 years, नो। आई वांट दिस फॉर 1 year। तो इस साल में आपने कुछ एडिशनल कैपिटल डाला है क्या? हाँ डाला है, 50,000 रुपया मेरे बिजनेस में। वो तो मेरे को बता देगा कि नहीं? चलो नाउ कैन यू टेल मी इन दिस इक्वेशन व्हाट इज मिसिंग? अरे ये सब स्टोरी जब चालू हुआ, ये स्टोरी में हु वाज मिसिंग? अरे मैं ना सिंपल बोल दूं, हमको परचेज सेल ये पूरे चैप्टर में दिया ही नहीं रहेगा। परचेज सेल मेरे पास नहीं है और मुझे मिल भी नहीं सकता है। अब ये इसमें बताओ, इसमें मिसिंग कौन है? सपोज तुम लोग मूवी देख रहे थे, मूवी चालू हुआ तभी मैंने बोला कि मुझे क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है? प्रॉफिट। तो इसमें कौन मिसिंग है? अरे कौन मिसिंग है बोलो? ये मिसिंग है ना? ये मिसिंग है, इसको मुझे ढूंढना है। अब मुझे 1 by 1 बताओ क्या क्या है मेरे पास। डू आई हैव ओपनिंग कैपिटल? डू आई हैव ड्रॉइंग्स? डू आई हैव एडिशनल कैपिटल? चलो ड्रॉइंग्स दे दिया मैंने। अरे इसको तो नहीं है, मतलब नो बोल रही है ये। सपोज 30,000 रुपया ड्रॉइंग्स अभी है तेरे पास ड्रॉइंग्स। हाँ अभी बोलो आगे। एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा? हाँ तो दिया रहेगा। से फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल इज 50,000। अब मिसिंग कौन है इधर? नेट प्रॉफिट। कैसे ढूंढोगे बताओ? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाओ। हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट? बोलो। हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। प्लीज पार्टिसिपेट। हम लोग पहले किससे स्टार्ट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है मेरे पास। हाँ तो ये माइनस ड्रॉइंग्स इक्वल टू से वो साइड जाएगा चल के, तो क्या हो जाएगा? प्लस ड्रॉइंग्स। बराबर है?
चलो अभी इसमें से हम क्या दो चीज माइनस करेंगे? अब ये प्लस एडिशनल कैपिटल वो साइड चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। डू यू एग्री विद दिस? ओके चलो, और एक चीज है, ये ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू के वो साइड जाके बैठेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। एक मिनट, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? उससे अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना दो। हाँ वो बोल रहे, अरे मेरे पास इनसफिशिएंट डेटा नहीं, आई डोंट हैव एनी डेटा। परचेस नहीं है, सेल नहीं है, सैलरी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रेंट नहीं है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का नहीं है, टेलीफोन एक्सपेंसेस का डिटेल नहीं, और अगर है भी तो सिलेक्टेड एक्सपेंसेस का है। परचेस का तो डेफिनेटली नहीं है मेरे पास डिटेल, सेल का भी डेफिनेटली नहीं है मेरे पास डिटेल। मेरे को पता ही नहीं है कि मैं 365 डेज में कितना चाय बेच रहा हूं। आई डोंट नो। यू कैन कम एंड आस्क मी ऑल्सो, तू दिन का कितना चाय बेचता है? नहीं पता है मेरे को कितना चाय बेचता, जबरदस्ती है, नहीं पता है मेरे को। देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस, बिलीव मी, दे डोंट नो हाउ मच इज सेल्ड एवरी डे। नहीं पता है। तुम चलो मैं एग्जांपल देता हूं, तुम जाओ नीचे वो इडली वाले के पास, उसको मालूम है कितना इडली बेचता है वो दिन का? तो फिर, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बैठ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता रहेगा? वो सुबह को इडली बेचेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा? तो फिर, तो इज ही नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर हिज बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट? So that means he is following which system? In fact, he is not following any system. He does not follow double entry system. मतलब he is automatically following which system? Single entry system. However, that is not a system. तो उन बिजनेसेस का जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, उन बिजनेसेस का एंड ऑफ द ईयर में, थ्रू आउट द ईयर तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे, बट एंड ऑफ द ईयर में तो हम ये मेथड यूज करके उनका प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस, ये नेट प्रॉफिट जो हमने ढूंढा इज एग्जैक्ट, एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट? दैट इज व्हाई आई सेड इट इज इनएक्यूरेट, क्योंकि यहां पे सब फिगर्स जो है ना वो या तो एस्टिमेटेड है, या तो फ्रॉम मेमोरी है, या फिजिकल वैल्यूएशन है। दे डोंट कम फ्रॉम एनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट एज बैलेंस शीट। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एनी लेजर अकाउंट्स। डू एग्री विद दिस? बोलो। अरे तो कल जाके जब आप सीए बनोगे तो ऐसा जरूरी है कि आपके पास जो प्रॉफिट फाइंड आउट करवाने आएंगे, मैं थ्रू आउट द ईयर अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, मैं थ्रू आउट द ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, बट एंड ऑफ द ईयर में कम से कम 30,000 देके सीए के पास जाके मेरा बिजनेस का प्रॉफिट तो ढूंढ सकता हूं ना। तो ऐसा सीए तुमको ये चैप्टर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मतलब तुम कैसा बात कर रहे हो मालूम है कि मैंने डॉक्टर बनाऊं लेकिन मैंने ना ये पढ़ाई छोड़ दिया है, तो ये बीमारी वाला आएगा ना बोलेगा ये मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, इसके बारे में मत पूछ, बाकी सबका मैं दवाई दे सकता हूँ। सपोज यू आर एमडी, जनरल एमडी, मतलब सब चीज का ट्रीटमेंट करते हो, मेरा पेट दुख रहा है, ये चैप्टर मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, तो तेरे पास कोई आएगा बोलेगा मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, मेरे को प्रॉफिट ढूंढना है। बोले नहीं, हम इधर उनका ही ढूंढते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। मतलब क्या अभी तक तू क्या है, आर यू मारवाड़ी कुछ? हाँ, तो मारवाड़ी लोग ऐसा बात कर रहा है, जिधर से पैसा आता रहेगा बोला हाँ तू बैठ मैं तेरे को प्रॉफिट ढूंढ के देता हूँ, बोला तू जा 2 दिन में प्रॉफिट मिल जाएगा। उसको बोल दो तेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए, थोड़ी आके पूछेगा कैसे आया बताओ मेरे को। कम से कम वो फाइंड आउट करने का तेरे को 10% 30,000 तो मिल रहा है। तो भाई ये करता रहता तो मैं इधर आके सुबह को 8 बजे लेक्चर देता। वो पर्सनल है। चलो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। बुक निकालो एक, उनको प्लीज एक बुक दो जरा। 3 बुक लेके बैठे हो आप लोग, शर्म नहीं आता आपको? डू यू रियली एक्सपेक्ट मी टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कितने पेज में ये चैप्टर खत्म होगा? मैं तुमको कितना सम्स है ये चैप्टर में, उतना पेजेस काउंट कर ले, इससे ज्यादा मैंने। हाँ, 1 पेज फॉर 1 क्वेश्चन एवरेज। अरे अभी तेरा क्वेश्चन जंप होते जा रहा है यार, मैंने तेरे को क्वेश्चन का आंसर दिया तो तुम लोग मेरे को दो अभी कितना क्वेश्चन है टोटल? हाँ बोलो। जस्ट नाउ आई एम सेंडिंग। ओके, हाँ 15 में से 1 क्वेश्चन का तो मैंने सोल्यूशन उधर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन।
उसमें तो ट्राई और सेल्फ भी रहेगा ना, तो निकाल दो, तो 10-15 पेज में हो जाएगा, 12 पेज। चलो रीड क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर आई डिस्प्ले द टेक्स्ट बुक हियर। रीड क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग नीचे सोल्यूशन में कुछ नहीं करोगे? चलो टेक क्वेश्चन नंबर 1। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन 1 अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर दैट ये चैप्टर में सम्स कैसे करना। सो वी कैन से they have said Anjali keeps her books by single entry system. This is wrong statement. Nobody keeps books on single entry system. What is correct statement? That Anjali does not maintain books of accounts under double entry system. That is a correct statement. But for some reason ये लोग हर चैप्टर में हर सम में ऐसे ही लिखेंगे। Anyways, they have given you the position as on 1st April 2016। 1st April 2016 मतलब beginning of the year। तो beginning of the year में they have given cash at bank, cash in hand, stock, sundry debtors, plant and machinery, bills receivable। ये सब क्या है? Cash at bank, cash in hand, stock, sundry debtors, plant and machinery, bills receivable, all these are assets, and creditors and bills payable, these are liabilities। On 31st March 2017, 31st March 2017 is the end of the year। उस पे भी आपको कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। अगेन दीज आर ऑल व्हाट? असेट्स। एंड फॉर बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड क्रेडिटर्स, इसमें से वन ऑफ देम इज असेट विच इज दैट बिल्स रिसीवेबल। नाउ ड्यूरिंग द ईयर Anjali has introduced further capital of rupees 1,500 and she spent 700 for personal use per month. So 700 per month is for personal use. This is what? Drawings. तो आपको additional capital भी दिया हुआ है। They have given you additional capital and they have also given you personal use मतलब drawings. I hope you everybody remember the theory कि कौन सा चीज कहाँ पे use होगा। Then depreciation on plant and machinery is 5% and create reserve for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. This is new part. What is this? I will discuss at appropriate time. They have given you two adjustments. Which is the first adjustment that they have given? Depreciation. And second adjustment that they have given is reserve for doubtful debts, that is RDD. ये दोनों का क्या करने का वो हम लोग देखेंगे। But right now they are asking you to prepare opening and closing statement of affairs। तो हम लोग opening and closing statement of affairs के लिए नीचे आपको फॉर्मेट दिया गया है। We will prepare this opening and closing statement of affairs together। I think the format is there। जो लोग के पास नहीं है please draw if you have, otherwise we will start। So पहले exactly the same way, those who don't have please draw। हाँ बट शी डज नॉट हैव इट, लेट हर ड्रॉ इट। या आपके पास वो टेक्स्ट बुक है ना उनका, उसमें लिखो ना। किसका टेक्स्ट बुक दिया आपने? चलेगा ना उसमें लिखेंगे तो? हाँ पेन पेंसिल जिससे लिखना उनको दे बोल दो भाई। चलो लेट अस ओके व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल फोकस ओनली ऑन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए विच इज द डेट दैट इज देयर? 1st April 2016। चलो go to the question and tell me which is the first asset। हाँ तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिखो कैश एट बैंक। राइट विथ मी प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट इनर कॉलम आउटर कॉलम। बोलो कैश एट बैंक का अमाउंट कितना है? 4,000। दिस इज नॉट इनर कॉलम आउटर कॉलम। चलो आफ्टर कैश एट बैंक व्हाट इज नेक्स्ट? कैश इन हैंड। बोलो कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है? 1,000। ओके व्हाट इज नेक्स्ट?
stock. Okay, what is next? These Sunday debtors are at the beginning of the year. How much is Sunday debtors at the beginning of the year? 8,400. Okay, what is next? Our first line में लिखो. फिक्स्ड एसेट है वो इसलिए. बोलो प्लांट एंड मशीनरी का फिगर 7,500. दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. चलो नेक्स्ट क्या है? बोलो कहां पे आएगा वो? बिल्स रिसीवेबल, व्हाट इज द फिगर? 2,600. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? क्रेडिटर्स कहां पे आएगा? लायबिलिटीज में लिखो. लायबिलिटीज में ऑफ कोर्स डोंट राइट इन फर्स्ट 4-5 लाइंस. बोलो हाउ मच इज क्रेडिटर्स का अमाउंट? इन फर्स्ट कॉलम, बिकॉज वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का अमाउंट है. बोलो नेक्स्ट. कितना है? 4,000. Will your statement of affairs tally? No. What is missing? Yes. So right now put totaling lines. You can leave one line and then total. Okay, total the assets first. Sorry. Yes, every time. Final accounts also we were doing that. 29,500 is correct. Okay. ये आप डिफरेंस बोल रहे हो कि टोटल बोल रहे हो? 29,500 is correct. उसमें से यू सब्ट्रैक्ट दिस टू ऑब्जर्व द प्रेजेंटेशन. ऐसे ही लिखना है. 7,500 माइनस करो इसमें से. 22,000 इज करेक्ट. 22,000 is balancing figure. Okay, now closing statement of affairs में what we have to do is we just have to write the figures because already closing statement of affairs में हमको figures दिया हुआ है. Now please one point is very important. कहीं पे तो आप closing statement of affairs का figures देखो. Tell me how much is plant and machinery? Yes, can you see this 7,500? Now this 7,500 जो बिग ओपनिंग या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में भी 7,500 था. अब लास्ट में वो लोग ने बोला है प्रोवाइड व्हाट? डेप्रीसिएशन. याद है हम लोग फाइनल अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन को प्लांट एंड मशीनरी में से क्या कर रहे हैं? माइनस. लेकिन वो हम नहीं करेंगे. अब देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है वी आर प्रिपेयरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स before adjustment. So we are doing this, you will understand why and how to do it. So right now you please focus on how to do it. So right now plant and machinery में से depreciation minus करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है. Similarly RDD का भी इफेक्ट नहीं देना है. So right now आप plant and machinery as it is लिखो 7,500. Right now I am not providing depreciation. Okay, chalo. Anybody? You can go in this order. You can find cash at bank at the end of the year. How much is cash at bank at the end of the year?
3,900 cash in hand, 2,000 stock is 9,000. okay, will you charge RDD right now? No creating RDD right now. Bills receivable at the end of the year check करो कितना है. Creditors and bills payable, tell me what are the figures. चलो similarly टोटल करो. हाँ 34,300 I think that is correct. Just somebody check and verify. Seven plus 8, 10 plus 2, 12, 12 plus 9, 21, 21 plus 10, 31, 31 plus 1, 32, 33,300 आना चाहिए. Somebody still check 33,300 is this correct? 33,300 ठीक है. चलो 33,300 है, not 34. 33,300 उसमें से ये दोनों माइनस करो. 33,300 just check, is it 29,600? Did you get 29,600? Okay, now I want to find out profit. देखो यहाँ पे I got opening capital, I got closing capital. Now I want to find out the net profit. बोलो net profit find out करने का formula is, we will start with which capital? Closing capital. ये वाला formula check out करो. You have to see this formula, closing capital. So let us start with closing capital. Look at this statement of affairs and tell me how much is closing capital. 29,600. So let us start with that. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड. ये चैप्टर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हैं बिकॉज ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं. आई कैन नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो आई विल हैव टू प्रिपेयर इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट. सो आई विल स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल. As on 31st March 2017, 29,600. बोलो इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे. लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. क्लोजिंग कैपिटल में नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज एड ड्रॉइंग्स. आई होप लॉजिकली यू रिमेंबर कि इसमें ड्रॉइंग्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं. सो ऐड ड्रॉइंग्स. नाउ चेक एंड टेल मी ड्रॉइंग्स के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है. व्हाट इज द विड्रॉवल अमाउंट. बट इट इज 700 per month. So come to the calculation column.
into 12. You have how much? 8,000. Now इसका जस्ट बीच में टोटल करो, इंटरमीडिएट टोटल. Is it 38,000? अब इसमें से हमको दो चीज माइनस करना है. What are the two things that you have to subtract? Number one, देखो यहाँ पे what are the two things that you have to subtract? हाँ, so you can come to the question, has she introduced further capital into the business? So further capital introduced, that is number one. Yes, or you can also write further capital, जो भी है दोनों सही है. Further capital introduced. How much is further capital introduced by her? Please see here, कौन से कॉलम में लिखना है. And second, opening capital as on 1/4/2016. How much is opening capital? I think it was 22. अब ये दोनों का टोटल हम बाहर लेके जाएंगे, जिसको हम माइनस करने वाले हैं. सो दैट इज वाई जब बाहर जाएगा इट शुड बी इन ब्रैकेट्स. 23, इसको माइनस करेंगे हम लोग. इज इट 14,500? Now see very carefully, this is definitely net profit, but this is not final net profit. Anybody, can you tell me why this is not final net profit? That is why हम लोग क्या बोल रहे हैं, this is net profit before providing any adjustment. Net profit before adjustments. Now can you tell me how many adjustments are there? 2. Which are those two? And RDD. ये दोनों के वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा. तो ये दोनों को हम इधर से क्या करेंगे? लेस. सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन लेस. नेक्स्ट लाइन नंबर 1, depreciation on plant and machinery. How much percent? मतलब 5/100 इंटू कितने पे कैलकुलेट करोगे? 7,500. For how many months? Which is inner column 375. So the next one is number 2. What is number 2? Yes. हाँ, मार्क्स भी पूरा चाहिए ना अपने को. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. बोलो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज हाउ मच परसेंट? 12. तो 5/100 इंटू, बोलो डेटर्स का अमाउंट कौन सा है? ओपनिंग डेटर्स लोगे कि क्लोजिंग डेटर्स लोगे? अरे आरडीडी कौन से डेट को कैलकुलेट कर रहे हो आप? एंड ऑफ द ईयर. तो कौन सा डेटर्स लोगे? क्लोजिंग. क्लोजिंग का डेटर्स बोलो कितना है? तो वापस करने का जरूरत नहीं, ये भी 375 आएगा. 375 प्लस 375 आउटर कॉलम में जाएगा 750 ब्रैकेट में. इसको माइनस करो 13,750. Can we now say this is our final net profit?
इट इज़ नॉट, दैट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट मुझे अप्रोक्सीमेट तो पता चला मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट इतना है। चलो अभी जो लोग को जाना है वो जा सकते हैं, बाकी लोग टेक क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 अभी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट नहीं है हमारे पास। चलो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खुद से बनाओ। सेम, हाँ सेम। ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखा है, ऐसा ही आपको लिखना है जैसे हमने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया। देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, फिर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल, पॉइंट नंबर 1, ऐसा ही सेम ब्रैकेट में, नो चेंज इन प्रेजेंटेशन, खाली आप डेट चेंज करोगे। हाउ मेनी, बस ये सेम यही साइज का बनाओ। हाँ मोर देन सफिशिएंट। आप काउंट कर लो ना कितना एसेट्स है इसके अंदर। आप ये ऑर्डर में लिखना एसेट साइड पे, पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखना, बाद में इन्वेस्टमेंट लिखना, बाद में डेटर्स लिखना, बाद में स्टॉक लिखना, बाद में कैशर्ड बैंक लिखना। ये 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर में लिखोगे आप। आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, दूसरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम साथ में बनाएंगे। प्लीज गिव द सेम हेडिंग एक्सेट्रा। जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे ही लिखो, जैसे सॉल्यूशन में रादर फर्स्ट क्वेश्चन का कैसे लिखा था हम लोग ने। ओके, हाउ मच इज ओपनिंग कैपिटल? एटलीस्ट ओपनिंग कैपिटल डिड यू गेट? नहीं। इफ ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो नहीं लिखने का, इन्वेस्टमेंट लिख के डैश नहीं लिखने का। नहीं है तो नहीं है, अभी लिख दिया तो कट मत करना, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा तो नहीं लिखने का। 35, 35, 67, 67. 48,000 ओपनिंग कैपिटल 48,000 है। ये हो गया। कौन सा सम कर रहे हो? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 48,000 ना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आई बिलीव कैपिटल, of course you have done it systematically, will be again balancing figure. How much is opening statement of affairs में capital 48,000, which is on 1/4/2017. So on 31st March 2018 closing capital, chalo anybody, what is the amount of closing capital? 1,09,000, 39,000, 1,39,000 you are getting. Okay, एटलीस्ट ये आया सबको। जो लोग का आ गया है आप लोग ये वाला फॉर्मेट बनाओ, सेम लाइंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 होगा। अभी नीचे जगह है तो बनाओ, कितना जगह है, इतना है, इतना लाइन्स चाहिए मिनिमम। हाँ आराम से आ जाएगा। एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फॉर द ईयर एंडेड या 31 मार्च 2018। Same format, don't change. Only one thing I want to explain. After that you can do it on your own. पहले आप फॉर्मेट रेडी करो। Okay, we will start with which capital in this statement? कौन से कैपिटल से स्टार्ट करोगे? क्लोजिंग कैपिटल, as on 31st March 2018, 1,39,000 that we got. बोलो आगे बोलो, क्या करने का इसके अंदर? नेक्स्ट क्या करोगे? क्वेश्चन मत बोलो, पहले बोलो इसमें करोगे क्या अभी नेक्स्ट? ऐड व्हाट? ड्राइंग्स को ऐड करोगे इसमें। ओके, नाउ अंडरलाइन करो ऐड ड्राइंग्स करके, बिकॉज क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो 2 बार ड्राइंग्स दिए आपको। बोलो विच पॉइंट्स में दे हैव गिवन ड्राइंग्स? इफ यू रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में हैव दे गिवन ड्राइंग्स। शी हैज विड्रॉन 2,000 per month during the first half year and remaining half of the second half of the year में 1,000, but this is per month। So drawings पहले आप लिखो कैश। चलो कैलकुलेशन, 2 ब्रैकेट मुझे बनाना है। हाउ मच इंटू हाउ मच प्लस हाउ मच इंटू हाउ मच। फर्स्ट हाफ मतलब हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए उसका ड्रॉइंग्स कितना था? ₹2,000। सो ब्रैकेट में लिखो ₹2,000 पर मंथ इंटू 6 प्लस ₹1,000 पर मंथ। सेकेंड हाफ मतलब रिमेनिंग हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। सो 1,000 पर मंथ इंटू 6। चलो इसका कैलकुलेशन करो। आर यू गेटिंग 18,000? 2,000 इंटू 6 12,000 और प्लस 6,000 18,000 आया। अच्छा, इसको इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि आप पॉइंट नंबर 2 या 3 दोनों में से पढ़ के बताओ ड्राइंग्स कौन सा है। शी सोल्ड हर प्राइवेट एसेट फॉर 40,000 एंड ब्रॉट द प्रोसीड्स इनटू बिजनेस। इज दिस ड्राइंग्स? तो ये क्या है? 40,000।
एडिशनल कैपिटल, ओके आगे बढ़ो. शी टुक गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 फॉर प्राइवेट यूज. इज दिस ड्रॉइंग्स? यस, तो उसके लिए गुड्स, कैश के नीचे लिखो गुड्स. गुड्स का अमाउंट इज 12,000. हाँ, ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. 18 + 12 that will go in the outer column. 30,000. Total the outer column 1,69,000. Next line we will have to subtract two things. तो लेस में नंबर 1 बोलो. लेस में नंबर 1 क्या माइनस करते हैं हम लोग? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. How much is further capital introduced? 40,000. Yes. तो ये तो ब्रैकेट में लिख देने का. सेल ऑफ प्राइवेट एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्राइवेट एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस. proceeds other from sale of private asset. And second one is opening capital as on 1/4/2017. कितना था? 48,000. ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम में जाएगा 88,000. अगेन टोटल आउटर कॉलम में ये ब्रैकेट में रहेगा 88,000. सब्ट्रैक्ट कितना था ये? एनीबडी डू रिमेंबर इसको हम क्या बुलाते हैं? नेट प्रॉफिट. करेक्ट. बिफोर एडजस्टमेंट्स. हाउ मेनी एडजस्टमेंट्स आर देयर? चेक. अगेन 2 एडजस्टमेंट्स. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड एंड चलो खुद से करो. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन इज 10%. हाउ मच इज प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू? 10,000. ये ओपनिंग में भी 10,000 है, क्लोजिंग में भी 10,000 है. ये ऑब्जर्व करने का ओपनिंग क्लोजिंग का फिगर सेम है कि नहीं. अलग रहेगा तो क्या करने का हम डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इट इज सेम. सो 10,000 का 10%. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. लेस में नंबर 1 depreciation on plant and machinery it is 10/100 into 10,000 into 12/12. So inner column 1,000. Next line number 2
reserve for doubtful debts, reserve for doubtful debts is how much percent? Check. 5%. Debtors का amount 45,000, उसका 5%. 2250, इसका टोटल बाहर लेके जाओ. चलो, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3250 माइनस करने के बाद व्हाट इज द फाइनल आंसर? ओके, सो दैट इज फाइनल नेट प्रॉफिट. $77. तुम्हारा कोई टेस्ट वेस्ट अनाउंस हुआ है क्या? फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट रख दूं? जल्दी बोलो, थोड़ा जल्दी, मतलब आज नहीं, सैटरडे को रख देता हूँ. सोच के बता देना, कल निशित सर को बता देना, बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, एनीवेज वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो और नेक्स्ट लेक्चर अदर. अब ये सब चैप्टर, इसमें क्या है मालूम है, इधर तक सब सम में सेम ही रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. खाली एडजस्टमेंट्स का लिस्ट बढ़ते जाएगा, और एडजस्टमेंट्स वही है जो हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में किए. व्हाटएवर विल कम वी विल सी.